So let's start our chapter kinematics वाला. ठीक है. Kinematics. So last class हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किया था, एंड वी डिफाइंड एक्सीलरेशन एज rate of change of velocity. Like we defined velocity as rate of change of displacement and speed as rate of change of distance traveled. Okay. Now there are three possible ways in which change in velocity may occur. Okay. So if I say velocity has changed, velocity has changed. So what are the possibilities of the change of velocity? Magnitude changes, and direction remains same. Direction remains same. Second is direction changes, but magnitude remains same. And last is both direction and magnitude changes. Okay. So कुछ भी possible है, या तो direction change हो जाए, magnitude change हो जाए, दोनों change हो जाए. So when only magnitude direction changes and velocity magnitude is constant. So this is like uniform circular motion. Uniform circular motion. मैंने यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया था क्या? What is uniform motion? Yes, sir. Uniform motion is when particle travels equal distance in equal interval of time on a straight line. पूरी definition थी. It travels equal distance in equal interval of time on a straight line. तो अपन उसको uniform velocity बोल सकते हैं. The velocity remains constant. When you talk about uniform circular motion, then we say that angular velocity remains constant. Angular velocity remains constant. But direction change हो रहा है linear velocity का, है ना? Angular velocity तो circular है. So the particle जब एक circle में constant speed से move करता है, when it's moving in the constant speed in the circle, then we say that it's a uniform circular motion. Okay. So उस केस में क्या होता है? उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि हाउ मच एंगल इट इज मूविंग इन 1 सेकंड. जैसे वेलोसिटी मतलब होता है हाउ मच डिस्टेंस इट मूव्स इन 1 सेकंड, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का 1 सेकंड में कितना एंगल मूव किया. सो इफ दिस एंगल, जो भी एंगल मूव कर रहा है 1 सेकंड में, अगर कांस्टेंट रहता है, देन द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. Then it's a uniform circular motion, and in that case what happens is the magnitude of the speed remains same, only direction changes. Okay. And direction changes, sorry, direction changes, and magnitude changes, direction remains same. So maybe it's traveling a straight line where the speed is continuously increasing or speed is continuously decreasing, and both direction. Okay. Another example of this magnitude changes, direction remains constant, like when you drop a ball. जब तुम किसी पत्थर को नीचे छोड़ते हो तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बट उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है.
and both direction and magnitude changes. It's like you throw a stone like this in a projectile motion. When you throw a stone like this in a projectile motion, तो क्या होता है, हर एक इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का और उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सब चेंज हो रहा है. ओके, so this is stone falling down. This is uniform circular motion and this is like projectile motion. ओके, ये तो वो एग्जांपल है जो अपन जानते हैं, बट एनी कोई भी एक रैंडम मोशन हो सकता है, वो भी हो सकता है. हम तो नेम्ड एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, यस. टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन. अगेन एक्सीलरेशन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है. सो फॉर अस जनरली instantaneous acceleration is at a given instant, average acceleration is on a given time interval. So everything which is at a given instant is known as instantaneous, and everything which is spread over a period of time is known as average. Okay, उतना काम का नहीं है जितना हमारा एवरेज स्पीड काम का था, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज्यादा सवाल किए थे. एंड देन इट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. दैट इज एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन इज वेरिएबल. तो वेरिएबल एक्सीलरेशन के सवाल तो बहुत कम आते हैं एग्जाम में, नेग्लिजिबल है, कोई पर्पस नहीं है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और जो हम इक्वेशंस भी पढ़ेंगे ना अभी, वो सारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की है. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस इट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. ओके, now we come to our rectilinear motion. So rectilinear motion किसको बोलते हैं? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. है ना? motion along a straight line is rectilinear motion, and motion along a curved line will be a curvilinear motion. Okay, there are three fundamental equations of motion for rectilinear motion with constant acceleration. अब हम rectilinear motion में जिनकी बात करेंगे, we'll talk about constant acceleration. Okay, हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन कौन सी है? v is equal to u plus at. what is v is equal to u plus at? उसमें u is your initial velocity, that is velocity at t is equal to 0. A is your acceleration which is constant, and v is velocity at any time t. किसी भी टाइम t पे अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी हो तो ये निकाल सकते हो. सो दिस v इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी. u इज फिक्स्ड, a इज फिक्स्ड. कि t इज 0 पे क्या वेलोसिटी है और a एक फिक्स है, तो तुम लोग कुछ भी वैल्यू t की पुट करोगे तो तुम्हारे को v आ जाएगा. इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ t यू विल गेट v. सेकंड है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसमें s इज व्हाट? s इज योर डिस्प्लेसमेंट. s इज योर डिस्प्लेसमेंट. बाकी v और u और a तो जो ऊपर डिफाइन किया वो का वही है. एंड फोर्थ इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो यहाँ पे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s में क्या है? at any time t when
velocity is v and displacement is s, तो ये रिलेशनशिप वैलिड होगा। एंड एस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या है, एस इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। तो यू और ए दे रखा है, तो कोई भी टाइम तुम पुट करो तो तुम्हारे पास उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। रिमेंबर एस क्या है, एस इज नॉट डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस ट्रेवल। So you have to read the question carefully when the question is asking whether the question is asking displacement or distance traveled. और यही गलती कभी कभी अच्छे सवाल में हो जाती है कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हो तो हम कुछ और निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इस फॉर्मूले से नहीं है, इस फॉर्मूले से हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, ओके। Yes, sir. Now see this, the difference here. What is acceleration? Rate of change of velocity. So let's say t1 पे अगर एक्सीलरेट वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पे वेलोसिटी v2 है, then your average acceleration is defined as change in velocity upon change in time. या t इज 0 पे v1 है और t इज t पे t नॉट पे v2 है, then average acceleration is v2 minus v1 upon t नॉट। और हमारे पास जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at में a is equal to v minus u by t. Now this equation is not same as this equation. Average acceleration भी v minus u upon t आ रहा है एंड यहाँ पे जो acceleration है वो भी v minus u upon t आ रहा है। Can you tell me what is the difference between the two equations? सर जनरलाइज करके लिख दिया। नहीं। Can someone tell me what is the major difference जहाँ पे तुम गलती कर सकते हो दोनों इक्वेशन में? सर जो पहली वाली इक्वेशन है वो पूरे मोशन के ड्यूरिंग एवरेज एक्सेलरेशन बताता है सर, लेकिन सेकंड जो इक्वेशन है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आती है, जहां पर एक्सेलरेशन a एक कांस्टेंट है पूरे मोशन के थ्रू आउट। वो तो ठीक है, लेकिन गलती क्या हो सकती है स्टूडेंट से सॉल्व करने में? तुम इस इक्वेशन उस इक्वेशन में क्या डिफरेंस देखते हो? जो तुमने बोला सुहेल वो सही है, सो अगर मैं इस इक्वेशन को भी ऐसे लिखता हूँ, नाउ इस इक्वेशन और उस इक्वेशन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? मैं कब इस इक्वेशन को यूज करूंगा, कब उस इक्वेशन को यूज करूंगा, और किस इक्वेशन को यूज करने से कुछ गलती हो सकती है? सर सेकंड वाली इक्वेशन में कोई भी v और u पुट करने पर
ए की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगी। हम्म सर लेकिन फर्स्ट में ये जरूरी नहीं है सर। क्यों? हम्म सर क्योंकि पूरे मोशन में हमने पहले से ही डिफाइन नहीं किया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हम्म ओके। सुहेल बोला तो सही है, लेकिन तूने कान को उल्टा पकड़ा है। ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलना है, दिस इक्वेशन a is equal to v minus u upon t, this tells put any value of t, any value of t and corresponding value of v. A will be constant, a will be same, या यूं बोलूं कि this equation is valid, this equation is valid at any time t, at any time t, कुछ भी वैल्यू टाइम की t की पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग v आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, एंड दिस इक्वेशन द वैल्यूज, मतलब वैलिड मतलब इक्वेशन वैलिड का मतलब है जो भी तुम वैल्यूज पुट करोगे वैलिड हो जाएगी। हियर फॉर डिफरेंट t you will get you will get different a। क्या मतलब हुआ उसका, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसका, इसका क्या मतलब हुआ बताओ मेरे। मैं एक सेकंड में यार, होल्ड करो, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। ओके, तो कुछ आया दिमाग में, क्या कहना चाहता हूँ मैं। मैं ये कहना चाह रहा यस हूँ सर। कि सपोज को तुम्हारे को किसी इंस्टेंट टी पे, t1 पे अगर v1 दे रखा है एंड यू नो u, देन यू फाइंड a, तुम a फाइंड करोगे, फिर अनदर वैल्यू t2 पुट करोगे तो तुम्हारे को v2 मिल जाएगा, अनदर वैल्यू t3 पुट करोगे तो v3 मिल जाएगा। ओके, बट अगर यहाँ पे किसी इंस्टेंट t पे अगर वेलोसिटी v पता है, v मालूम है और u मालूम है, तो तुम a निकाल लोगे, या उस a को यूज करके वापस किसी और t पे कोई और वैल्यू ऑफ v नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी एवरेज एक्सीलरेशन निकाल के उसी एवरेज एक्सीलरेशन से वापस से अनदर टाइम टी पे v निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं है, क्यों, अनदर टाइम टी के लिए तो एवरेज एक्सीलरेशन भी चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया क्या। यस। ओके, चले आगे। यस सर। यस। चलो आगे, ऐसे व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट।
Now, एवरेज वेलोसिटी, एक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, वो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? तो अगर मैं यूज कर लू S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इस रिजल्ट को यूज करूं मैं, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, विच इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय टाइम, विच इज यू प्लस हाफ ए टी, विच इज 2u प्लस ए टी बाय 2, which is equal to u plus at by 2, which will u plus v by 2. तो if you want to find out average velocity, तो अगर तुम्हारे को इनिशियल वेलोसिटी मालूम है u, एट एनी गिवन टाइम तुम्हारे को वेलोसिटी मालूम है v, तो जीरो से लेकर t की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? u plus v by 2. हालांकि मैंने उसमें क्या है, इस रिजल्ट को यूज किया जो अभी तक मैंने बताया नहीं तुम लोगों को, मतलब प्रूव नहीं किया हम लोगों ने, इस रिजल्ट को यूज किया, हम प्रूव भी नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये रिजल्ट सही है, ठीक है? हम लोग अभी नहीं करेंगे प्रूफ सारे। क्लियर है? सो एवरेज वेलोसिटी का एक और रिजल्ट है यस सर। u प्लस वी बाई टू, बट ये दिस इज वैलिड, ये कब वैलिड है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर, कब वैलिड है? अगर सर तुम्हारा कोई इनिशियल, एक्सेलरेशन कौन? हाँ, ओनली फॉर द कंडीशन व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है और तुम्हारी u और v मालूम है किसी भी टाइम पे, तो तुम u और उस टाइम पीरियड में तुम्हारे को एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू से निकलेगी। ये तभी वैलिड है जब हम एक्सीलरेशन कांस्टेंट लेते हैं। सो इनफैक्ट अगर मैं चौथी क्वेश्चन यहाँ पे लिख लूं, एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी बाई टू, तो सारी क्वेश्चन जो वैलिड है ये तभी वैलिड है जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। एंड सिमिलरली दिस इज व्हाट s into ut plus half at square tells us the distance traveled in t seconds. This is, अगर डिस्प्लेसमेंट बोल दे तो डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड, जीरो से लेके टी तक। नाउ व्हाट इफ आई आस्क डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकंड, टी सेकंड में नहीं, टीएच सेकंड में, दैट इज टीएच सेकंड का क्या मतलब है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकंड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस वन सेकंड, है ना? One is how much time distance you travel in 5 seconds and how much distance you travel in 5th second, 5 सेकंड में और 5वें सेकंड में, है ना? हिंदी में बोलेंगे तो 5वें सेकंड में, 3वें सेकंड में, 6ठे सेकंड में, 7वें सेकंड में। ओके, सो दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकंड minus distance travel in t minus 1 second, which will come out to be u plus half a 2t minus 1. Okay, so generally we write this equation like this, subscript t, subscript लिख लेते हैं t को, the displacement in the tth second is u plus half a 2t minus 1. remember this is displacement, है ना? ये displacement का unit है, but this is the unit of velocity. This is dimensionally correct equation.
if you see the dimension here, the dimension of S is L, and this dimension is LT minus 1 into T, which again comes out with dimension of L. It seems here that this equation is dimensionally incorrect, but this is not dimensionally correct. This equation is basically U into 1 plus half A 2T minus 1 into 1. So there is a 1 multiplied here. There is 1 multiplied here, which is having a dimension of time. And there is a 1 multiplied here, which is having a dimension of time. So sometimes what happens is, there is a constant which has the dimension. और अगर वो constant 1 है और हमने नहीं लिखा है, तो ऐसा लगता है कि वो dimension गलत हो रही है equation. But this is one example where on the surface we see that the equation is dimension incorrect, but equation is not actually dimension correct. It is dimensionally correct equation. ठीक है? Yes, sir. चलो. Okay, this is also something very interesting. You write S is equal to UT plus half AT square. And we have this equation V is equal to U plus AT. So that is U is equal to V minus AT. This can also be written as S equal to VT minus half AT square. So instead of writing UT plus half AT square, you can write S equal to VT minus half AT square. If the velocity V is given at time t, we don't have to find the velocity U at time t is equal to 0 and then use the equation. We can also find the displacement in terms of VT minus half AT square. Okay, ऐसा भी कर सकते हैं. Okay. So now we come to the graph. So graph is something I cannot start today, क्योंकि ग्राफ में तो फिर बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, हमारे को सारे ग्राफ एक साथ बनाने पड़ेंगे. तो व्हाट आई विल डू इज आई ओवर द क्लास हियर ओनली, और कल की क्लास में हम फिर जो है ना ग्राफ को डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके. तो Yes, sir. आई ओवर द क्लास हियर ओनली.